Today I will revise chapter 7 and 9 of civics, that is urban administration and urban livelihood. Here in this chapter, first of all, you have to learn the meaning of urban. What is the meaning of urban? Urban means in the cities or the life of city people, so or administration of city people. So first of all, uh, whole of the country in India is divided into number of states, and all the states are divided into number of states are divided into number of districts. Yes, and districts are further divided into cities. Okay, and in all the cities administration is carried through the different corporation committees or different government agencies. So now today I will discuss with you role of these government agencies. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पता होना चाहिए द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड. WARD, ward, and elections are held in these ward and representatives are elected by the people, and these representatives are called councillor. Each ward has a different representative or different councillor. ठीक है, तो जो सिटी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स एंड ईच वार्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द वार्ड काउंसलर. इसको क्या कहते हैं? वार्ड काउंसलर भी कहते हैं बेटा, या फिर म्यूनिसिपल काउंसलर भी कहते हैं. अब ये म्यूनिसिपल काउंसलर और वार्ड काउंसलर के फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स इनके पास लेकर जाते हैं, कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. सो थ्रू अ शॉर्ट स्टोरी इन योर बुक you have learned that children, they were playing cricket and they broke street light and they wanted to pay fine for that, and they went to Yasmin Khala. वो यास्मीन खाला के पास गए. She was retired from municipal council and they wanted to pay fine for that, and Yasmin Khala told and explained about the municipal corporation in the cities. So you all have the knowledge of municipal corporation and the administration in the cities. और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शंस क्या होते हैं. यस, फर्स्ट फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज to clean the city and to arrange proper lighting for the streets, because if citizens are paying taxes, so it is the responsibility of the municipal corporation to keep the city neat and clean and to proper take care the lighting of the streets. Then second is to provide safe drinking water for people, because water is the necessity and it is a responsibility of municipal corporation to provide safe drinking water. Acha students, if you are not getting safe drinking water, then what are your rights? What are your rights? Who will tell me? If you are not getting safe drinking water, तो आपके rights क्या हैं? क्या वो पानी पी लोगे इजीली और कोई भी कंप्लेंट नहीं करोगे? ठीक है, हाँ जी, tell me, what are your rights? If you are not getting safe drinking water in your home, अगर आप देख रहे हो कि आपके घर में पानी जो प्रॉपर नहीं आ रहा, तो what you will do? क्या करोगे आप बच्चे? Yes. Okay, Bhavya, very good beta. Bhavya, हाँ जी, keep your mic on, Bhavya. Yes, ma'am. हाँ जी, what you will do if you are not getting safe drinking water in your home? What you will do? Yes, Suhana, keep your mic on. Yes, ma'am. Ma'am, we can protest against the government, and also we can change the government. Okay, you can complain also. आप complain भी कर सकते हो,
and sometimes in newspaper you can find some photographs in which people they are complaining with the photographs. वो उसकी फोटो क्लिक करके जो है वो लोगों को दिखाते हैं कि इन देयर एरिया वाटर इज नॉट सेफ, एंड इससे क्या होता है बाकी न्यूज पेपर पढ़कर जो ऑफिसर्स हैं वो उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट इफ you are not getting proper facilities, then you have a right to complain against those. Clear? Very good, beta. Next is about the problem of electricity. We are paying bill for electricity, and if electricity is not in our area, then we can also complain for that, so that proper electricity should be in our area. Clear? Yes. Next is about the traffic control. Traffic control, to manage traffic control is the responsibility of the municipal corporation, so that in the city traffic jam could not be there. Then garbage collection, it is the responsibility of the municipal corporation to collect garbage. ठीक है, क्योंकि अगर garbage collect नहीं होगा तो what will happen? Yes, you tell me, what will happen in the city if garbage not be collected? Yes, Hanji, very good. Yes, Krishna, what will happen if the garbage will not be collected properly? If municipal corporation will not do its work and garbage will not be collected in the city, what will happen, Krishna? Hanji? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, when municipal corporation did not throw the garbage in the dustbins and in public places, so we will take a action against the municipal corporation, and we complained also. And diseases may spread, mosquitoes, flies. ठीक है, और इससे क्या होता है जो लोकेलिटी है वो प्रॉपर क्लीन नहीं होगी. वेरी गुड बेटा. यस, सो बिल्डिंग स्कूल्स. ठीक है, सिटी में प्रॉपर स्कूल्स को जो है कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, रोड्स, प्रॉपर रोड्स की जो है वो मेंटेनेंस, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. इन दिस वे इट इज क्लियर दैट दीज आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. इसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए सोर्सेज. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इतने सारे फंक्शन करती हैं, तो इनके सोर्सेज क्या होते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्टेड टैक्सेस, different type of taxes are there. Property tax is there, entertainment tax is there, government grants. government grants का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने अपनी सिटीज, अपने अपने एरियाज में प्रॉपर एक्सपेंडिचर कर सके. In this way, proper tax is collected, and through this tax, proper expenditure is incurred on the public facilities. Clear? So these are the sources of funds for municipal corporation. Next is about the community protest. In the chapter, you have learned about the protest of Gangabai. Who was Gangabai? Why she protested? Have you knowledge of Gangabai? Who will tell me? Who was Gangabai and why she protested? Why she was worried? क्यों worried थी बेटा वो? And किस तरह से उसने अपनी problems को solve किया? Number one, who was Gangabai? Second is why she protested, and third, how she tried to solve the problem. कैसे उसने problem को solve किया? Who will tell me? Yes, very good. Bani, Anji, raise your hand. Yes, हाँ, keep your mic on. Anji. Yes, ma'am. Yes, Gangabai. Who was Gangabai? Gangabai was a woman in a village, and in their village, the garbage was not collected on a regular basis, and the municipal corporation was not regular towards this issue. So Gangabai collected some people and protested outside the municipal corporation office, and they told that everything was right, but it is not from village. We are talking about the city. So आपने बताना Gangabai from the city, she complained because the garbage collection was not proper in her area. So she gathered people
and all the people, they wrote their letters in the form of complaints, and they got signed. And after that, municipal councillor, he was able to solve their problem. And after some days, garbage collection was proper in her area. It is clear, Vani? Now it is clear to you? Yes. Clear? Okay, very good. Other student? Yes. Any other student? Yes. Any other student? Yes, Rishita. Yes, Rishita. हाँ जी बेटा. Rishita. Yes, ma'am. Gangabai was a woman from city. She protested because the garbage was not being collected from their ward and people were getting ill from the smell. She gathered a small group of women and began shouting in front of municipal councillor's house. Very good. And the result, what was the result of her protest? Her problem was solved or not? The problems were solved and the garbage was being collected. Regular basis. Very good, Rishita. Very good. Clear? So, next is about the different topic of this chapter, that is subcontracting. Subcontracting क्या होती है बेटा? Earlier, the problem, or you can say the work of the garbage collection was totally on the government staff. यानी कि गवर्नमेंट जो है वो खुद स्टाफ अपॉइंट करती थी एंड गार्बेज कलेक्शन वाज इनिशिएटेड. बट नाउअडेज द पॉलिसी हैज बीन चेंज्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन गिवन टू सम प्राइवेट पीपल. अब ये प्राइवेट पीपल क्या होते हैं? इनके अपना स्टाफ होता है, इनके अपने जो है वो गार्बेज ट्रक्स होते हैं एंड रेगुलर बेसिस के ऊपर ये सिटी को क्लीन करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं गवर्नमेंट से. एंड लेकिन ये जो होते हैं वर्कर्स, ये वर्कर्स बताओ परमानेंट होते हैं कि कैजुअल होते हैं? ये परमानेंट होते हैं कि कैजुअल होते हैं? कैजुअल वर्कर्स होते हैं. ठीक है. सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये प्राइवेट जो है प्राइवेटाइज कर दिया है इसको, so that is known as subcontracting. Clear? Okay, concept is clear. Still, Bhavya, yes, what is subcontracting? But this concept is clear to you? Yes, ma'am. Subcontracting means work before done by temporary workers is now done by private workers. Private company. It means city में जो गार्बेज कलेक्शन का काम है, जो पहले गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती थी, अब वो प्राइवेट कंपनीज जो हैं उसको कंप्लीट करती हैं. उनका अपना स्टाफ होता है. ये स्टाफ जो है वो परमानेंट नहीं होता, ये कैजुअल या डेली वेज बेसिस पे होता है. इट इज क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट इज अबाउट द सिटी ऑफ सूरत. कि सूरत जो है उसका रिजल्ट यानी कि कुछ इयर्स में कैसे चेंज हुआ. Earlier the city of Surat had a plague in 1994 and you know Surat was considered the dirtiest city in India. ठीक है. एंड रेस्टोरेंट्स में मतलब या उसके सामने या लोगों के घरों के सामने जो है वो डंप लगे होते थे और कलेक्शन गार्बेज कलेक्शन प्रॉपर नहीं होती थी. स्वीपर जो है वो रेगुलर नहीं आते थे, जिसके कारण क्या हो गया, सिटी में एक ऐसी डिजीज स्प्रेड हुई जो कम्युनिकेबल डिजीज मानी जाती है एंड मैनी पीपल दे डाइड ड्यू टू दिस डिजीज. व्हाट पीपल ऑफ सूरत दे टुक अ जॉइंट एफर्ट. वो इकट्ठे हुए और उन्होंने खुद सेल्फ हेल्प का मतलब होता है गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने खुद जो है वो क्लीनिंग एक कैंपेन स्टार्ट की. और आपको पता है कुछ ही पर्टिकुलर ईयर्स में सूरत जो है वो इतनी क्लीन सिटी मानी गई है कि नाउ इट इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. इसका मतलब क्या होता है, सिटी को क्लीन करने में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, किसका रोल होता है ज्यादा? पीपल, जो कॉमन पीपल होते हैं, सिटीजन्स. अगर वो सिटी को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो गवर्नमेंट की हेल्प से काफी हद तक जो है वो प्रॉपर सिटी में डिजीजेस को स्प्रेड करने से रोका जा सकता है. सो आई थिंक द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आर क्लियर लाइक इन द बैक एक्सरसाइज. व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला? व्हाई? Because they wanted to pay fine. Okay, very good. Okay, 4 works, 5 works for municipal corporation and city dweller we have discussed. Who is a municipal councillor or ward councillor? I have discussed with you. What did Gangabai do and why? Gangabai ने क्या किया? She collected large number of women and they went to municipal councillor to protest against the garbage dumps. And in this way, her problem was solved and garbage collection was on the regular basis. Then how does municipal corporation earns money? Municipal corporation के पास क्या क्या taxes हैं? Property tax is there, water tax is there, education tax.
पार्किंग जॉब करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, टैक्सेस ऑन होटल्स, शॉप्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, so all these are the different kind of taxes. ठीक है, next question is next chapter is about the urban livelihood. इसमें हमने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस इन द सिटी। जो सिटी में लोग रहते हैं उनकी ऑक्यूपेशंस, उनके प्रोफेशंस क्या हैं। अदरवाइज देखा जाए तो सिटी में नंबर ऑफ पीपल दे आर इन एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैज इट्स ओन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। कैन यू लिस्ट 5 ऑफ प्रोफेशन इन द सिटीज? क्या आप बच्चे सिटी के 5 प्रोफेशन और ऑक्यूपेशंस के बारे में बता सकते हो? यस, हाँ जी, एनीवन सिटी में प्रोफेशन बेटा? डॉक्टर, हाँ जी, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स, शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन, वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, वेरी गुड। और ऋषिता, हाँ जी ऋषिता बैठो बेटा, वेरी गुड, हाँ जी। एनी अदर देन दीज? आपने चैप्टर में बहुत से प्रोफेशंस पढ़े हैं, ऑक्यूपेशंस पढ़ी हैं बेटा इस चैप्टर में, है ना? यस मैम। हाँ जी, बोलिए बच्चे। ऋषिता? यस मैम, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वेरी गुड। टीचर्स, स्टार्टिंग में पढ़ा वेजिटेबल, इंजीनियर्स, स्ट्रीट हॉकर्स, लेबर्स। तो इसमें मेन हमने वेजिटेबल वेंडर्स। तो स्टार्टिंग वन बाय वन वी विल डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स साइड बाय साइड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपकी जो चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें दिखाया कि सम गर्ल्स दे आर विजिटिंग द सिटी एंड उनकी जो है मॉर्निंग का सीन, मॉर्निंग के सीन में वो क्या देखती हैं? सम पीपल दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, फ्लावर, कॉबलर, बार्बर। ठीक है, मॉर्निंग का सीन यही होता है ना। तो ये सारी ऑक्यूपेशंस हैं। जैसे ही आप अपने घर से आते हो स्कूल के लिए तो आप देखते हो रास्ते में सो मेनी पीपल दे आर, ठीक है, दे आर गेटिंग रेडी विद देयर थिंग्स, क्योंकि उन्होंने उनको बेचना है। तो ये उनका प्रोफेशन है, उनका लाइवलीहुड है, उनका ऑक्यूपेशन है। जो है वो रूटीन की लाइफ को जो है और स्मूथ करने के लिए क्या अर्निंग कर रहे हैं, इनकम कहाँ से ले रहे हैं। रिक्शा पुलर, फिर वो एक रिक्शा पे बैठती हैं तो एक रिक्शा की स्टोरी, रिक्शा पुलर की स्टोरी बताई गई है। बच्चू मांझी, एक स्टोरी है बच्चू मांझी। Who will tell me the story of बच्चू मांझी in this chapter? Very interesting story. बच्चू मांझी की स्टोरी है इसमें। Who will tell me? Yes, Krishna. Very good. Yes. Keep your mic on. Who was बच्चू मांझी? Keep your mic on. हाँ जी भव्या। यस मैम, बच्चू मांझी एक रिक्शा पुलर होता है मैम, वो बिहार से होता है। और मैम बिहार में वो एक मैसन, मैम वो मैसन की जॉब की जैसे काम करता है। वो पहले मैसन था और जब यहाँ पे सिटी में है उसने एक ओल्ड रिक्शा खरीदा जो कि उसकी जो पेमेंट थी वो इंस्टॉलमेंट्स में देता था। और वो सुबह 8:30 से लेके 8:30 की इवनिंग तक वो काम करता था। और वो 6 किलोमीटर्स सराउंडिंग एरियाज पे जाता था। वो हर एक कस्टमर से 5 to 10 रुपीज लेता था। Now tell me, he was satisfied? No. Ma'am, no. Why? Because he faced many problems. Yes, ma'am. Summer season, rainy season, severe winter season. Ma'am, when he is ill, he cannot do work. When he fall ill, so on that day, his earning was totally zero. जिस दिन वो बीमार होता था तो उसकी अर्निंग जो है वो जीरो होती है। ठीक है, एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही नहीं, बहुत से रिक्शा पुलर्स की ऐसी प्रॉब्लम है जो सिटी में काम कर रहे। इसका मतलब क्या है? सिटी लाइफ इज नॉट कंफर्टेबल। Many people you can say migrated from village to cities in search of employment facilities. All the people, they are not satisfied. If they are living in the cities, the condition in the city is very grim. Clear? It is okay? Anji. Next है about the life beta. Next is about the life of daily wage labor. Daily wage labor कौन होते हैं? जिनको daily wage पे employ किया जाता है। अच्छा, now tell me, daily wage labor क्या क्या काम करते हैं? कौन कौन से काम करते हैं डेली वेज लेबर? आपने अपने नियर अबाउट लोकेलिटी में घर को बनते देखा होगा, हाउस कंस्ट्रक्शन देखी होगी, रोड्स को डिग करते देखा होगा,
तो डेली वेज लेबर जो है क्या क्या काम करते हैं? हु विल टेल मी? रेज योर हैंड। डेली वेज लेबर, हाँ जी रेज योर हैंड। डेली वेज लेबर जो है उनका क्या काम होता है बच्चे? यस नित्या, वेरी गुड, कीप योर माइक ऑन नित्या। हाँ जी, डेली वेज लेबर बच्चे। यस हाँ जी बच्चे, डेली वेज लेबर। मैम, डेली वेज laborers are those that do daily work. Their They get their their wages are very low. दे गेट देयर सैलरी ऑन डेली वेज, डेली बेसिस। डेली बेसिस का मतलब रोज अगर काम करेंगे रोज उनको सैलरी मिलती है। 9 to 5 काम करेंगे तो ओवर टाइम के अलग से मनी मिलती है। बट देयर जॉब इज नॉट सेफ सिक्योर, कभी उनको काम मिलता है कभी नहीं मिलता। और काम लेने के लिए उनको कहाँ पे जाना पड़ता है? वेरी गुड, लेबर चौक। Labor तो व्हाट इज लेबर चौक? labor job. लेबर चौक क्या है बच्चे? व्हाट इज लेबर चौक? It is Yes, labor chowk is a place where labor they come in search of employment with their tools. अपने अपने tools के साथ आते हैं and they get employment on daily basis. Sometimes they are without work क्योंकि रोज उनको काम नहीं मिलता and their job is not safe and secure. उनकी जॉब जो है वो सेफ और सिक्योर नहीं, प्राइवेट जॉब होती है, प्राइवेटाइज होती है। तो कौन कौन से काम करते हैं लेबर चौक के जो लेबर होते हैं? डिगिंग, ठीक है, रोड्स को डिगिंग करते हैं। मैसन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, जो लोग मजदूरी का काम करते हैं, घरों को बनाते हैं, ठीक है। लोडिंग का काम करते हैं, ट्रक को लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, ठीक है। फिटिंग का, पाइपलाइंस का, डिगिंग का। तो ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है ये डेली वेज वर्कर्स जो हैं वो करते हैं। इसके अलावा एक और ऑक्यूपेशन आपने पढ़ा होगा, वेंडिंग, स्ट्रीट हॉकिंग, वेंडिंग, जो लोग रोड टू रोड, स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाकर चीजें बेचते हैं। हॉकिंग, आपको आवाज लगाकर अपना सामान बेचते हैं। कई लोग स्ट्रीट के पास बैठकर रोड साइड जो है सामान बेचते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? वैसे देखा जाए क्यों इनको प्रॉब्लमेटिक कहा जाता है? क्योंकि ये ट्रैफिक जैम, मेन ट्रैफिक जैम जो है, अगर रोड्स पे ये बैठ जाएंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक जैम होगा। और वेंडिंग का मतलब होता है कि अगर ये डोर टू डोर, स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इनकी प्रॉब्लम जो है ये रूटीन बेसिस के ऊपर जब ये सामान बेचते हैं तो इट इज नॉट सेफ कि इनका जो सामान है, जरूरी नहीं कि सारा का सारा बिक जाता है, पेरिशेबल चीजें जो हैं वो खराब भी हो जाती हैं। तो समटाइम्स दीज पीपल दे हैव टू फेस मैनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कैन यू टेल मी एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दीज पीपल? वेंडर्स होते हैं, जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, एनी 2 प्रॉब्लम्स? सुहाना, हाँ जी, any 2 problems of these people, vendors, street hawkers? Yes, ma'am. Ma'am, their job is not permanent. They are paid when they are required whenever people wanted them. They wait on the labor chowk. Their problems are unlimited. बच्चे वेंडर जो सामान बेचते हैं, हॉकर्स जो अपना सामान रोड टू रोड, स्ट्रीट टू। Ma'am, sometimes their vegetables are not sold and their vegetables get rotten and their money get waste. वेरी गुड, हाँ, तो ये प्रॉब्लम्स हैं इनकी, वेंडर जो होते हैं, ठीक है, वेरी गुड बेटा। इसके बाद फिर हमने थोड़ा सा और डिफरेंट लेवल पढ़ा था, शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स जो होते हैं, उनके जो शोरूम मैनेजर्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अपना सुपरवाइज करने के लिए स्टाफ रखना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रॉपर मेंटेन, एसी जो होना चाहिए, देन उनको अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट है जो शोरूम्स या मार्केट या जो बिग शॉप्स होती हैं वहां पर लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। जिसमें हमने हरप्रीत और वंदना की स्टोरी पढ़ी थी कि वो दोनों एक शोरूम मैनेजर, शोरूम ओनर हैं एंड देयर वर्क इज रिगार्डिंग डिजाइनर क्लोथ्स। उनके जो क्लोथ्स हैं फॉरेन कंट्रीज में सेल होते हैं, लेकिन उनको रॉ मटेरियल दूसरी एरिया से मंगवाना पड़ता है एंड नो डाउट दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट, ठीक है, एंड दे कैन अफोर्ड कंफर्टेबल लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, ठीक है। व्हाट स्टिल मेनी प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस। नेक्स्ट फिर हमने मैम ये जो हरप्रीत और वंदना है मैम, ये कौन से वर्कर्स हैं? ये बच्चे, ये वर्कर्स ये सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। ना ये परमानेंट है, ना ये डेली वेज है, ना ये कैजुअल है, ये सेल्फ
सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब इनका अपना काम होता है, ये किसी और के लिए, ये ऑनर है, ये खुद और इनकी अपनी मतलब शॉप ही ऑनर है, ठीक है, क्लियर? ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट इज अबाउट फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। अब हमने बात करनी है कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर जैसे निर्मला की स्टोरी, निर्मला एक वर्कर है, ठीक है, जिसको फैक्ट्री में कुछ मंथ के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। जब फैक्ट्री को ऑर्डर पूरा हो जाता है तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। इनकी प्रॉपर सैलरीज जो हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, इनको किसी भी तरह से मेडिकल जो है फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, ना ही इनकी ओल्ड एज के लिए कोई सेविंग्स होती हैं, और ना ही इनको ऑफ मिलता है नेशनल हॉलीडेज और संडेज। तो ये कैजुअल, निर्मला जैसी बहुत सी फैक्ट्रीज में काम करने वाली जो लेडीज हैं या इवन जेंट्स भी हैं, दे आर कॉल्ड कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स के 5 फीचर्स आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, देयर जॉब इज नॉट सेफ एंड सिक्योर, एनी टाइम दे कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब। थर्ड, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, उनको ऑफ हॉलीडेज नहीं मिलती हैं, नेशनल हॉलीडेज या संडेज नहीं मिलते हैं, एंड बहुत ज्यादा वर्क करवाया जाता है, वर्क एक्सप्लॉयटेशन इज देयर, ठीक है। सो अदर देन दैट, यानी कि अब उनको अर्निंग के अलावा और भी बहुत से सोर्सेज को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमने पढ़ा सुधा। सुधा जो परमानेंट वर्कर है। अब सुधा के बारे में हमने बताना है कि सुधा एक परमानेंट वर्कर है और उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है वो हमने बताया। हु विल टेल मी अबाउट द लाइफ ऑफ सुधा, व्हाई हर लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल and what kind of worker she is? Yes, permanent. And her life is comfortable or not? Comfortable because she is a marketing manager and many people they work under her, and uska facilities है saving, national holiday saving for old days, she is getting medical facilities है उसको, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली हर लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड कैजुअल, तो आपने परमानेंट और कैजुअल जो है उसका अलग अलग डिफरेंशिएट देना। अगर आपको आप मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि व्हाट बेनिफिट सुधा इज गेटिंग, तो आपने सिर्फ सुधा के ही बेनिफिट्स बताने, क्लियर। उसमें आपने बताना है कि सुधा की लाइफ कंफर्टेबल क्यों है, बिकॉज शी इज गेटिंग रेगुलर सैलरी, हर जॉब इज फिक्स, ठीक है, उसकी जॉब फिक्स है, उसको कोई मंथली जो है वो टेंशन नहीं हुआ, एंड सेविंग फॉर ओल्ड एज, a part of her salary is kept in a fixed fund with the government and she will earn interest on these savings, ठीक है। and जब वो रिटायर हो जाएगी then she will get this money and she can live her life comfortably. Holidays, she also gets off on national holidays, Sundays and annual leave भी उसको मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए she can afford. Her company pays a medical expenses up to certain amount for her and family members. She gets medical leave if she falls ill. अगर वो बीमार होती है तो उसको मेडिकल लीव मिलती है, and her salary would not be deducted. अब उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी अगर वो लीव देती। So these kind of facilities Sudha is getting because she is permanent worker. Clear? So all these concepts regarding this chapter should be clear to you. Now any doubt? No?